Hi, how are you? How are you doing? Hey, don't get confused. I'm not asking this question to you. In fact, I'm going to start the session. When someone asks this question to us, we always replied in a scripting way, in a reflexive way, like, yes, I'm okay, good, as usual, well. But does it ever happen that you have asked this question to yourselves and reply in very honesty way? Does it ever happen that you have openly talked about your physical health and mental health? We all know that our physical health is also somewhat dependent on our mental health, and mental health may be related with our emotions. So today we are going to discuss about our emotions, emotional wellness, our workload, stress, and stress between the workload and relationship. So stay with us. Hello everyone, I'm Nikita Sharma. Would like to welcome you all on SOC Talk Show. And our today's topic is how to live an authentic life. And for that, I have joined with Mr. Nandan Garg, PhD. Sir is a technical project manager at Axion Labs, a US-based IT company. Sir also has started an organization called Atma Shakti for empowering individuals through emotional awareness and self-development. And Sir also do this task through his YouTube channel and weekly meetups. So I would like to welcome you, sir, on SOC Talk Show. Please welcome, sir, for a few words. Thank you very much. I'm very grateful for this opportunity. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. So, sir, shall we move ahead? Yes, we can begin. Okay, sir. So, sir, now without wasting time, actually I have many questions in my mind and I have prepared my question based on the audience mind also. So, we will get the answer of all the questions that we face in our daily life. So, I am here with my first question. Sir, firstly tell us what we can mean by living an authentic life. What is the meaning of authentic life? Sure. तो I'll answer both in English and Hindi ताकि सबको बहुत अच्छे से समझ में आए. Yes, ये sir. एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, how to live an authentic life या what it actually means to be authentic. यूजुअली हम अगर हमारी लाइफ को स्टडी करें तो हम देखते हैं कि हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें डेफिनेटली बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ का मतलब ही होता है कि हम कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ. तो जो लोग हमारे आसपास हैं उनका हमारे ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है. यूजुअली हम चाहते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर अच्छा हो, परंतु कई बार और या मोस्टली ये देखने में आता है और रिसर्च भी इस चीज को कहती है कि हम जब जीवन जीते हैं तो वी आर एक्चुअली लिविंग हाउ अदर्स वांट अस टू लिव अवर लाइफ. तो हम मेरा एक व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है जो मेरे पास्ट से आई है और वो पर्सनालिटी यूनिक पर्सनालिटी है, पर हम उस पर्सनालिटी को प्रेजेंट करने के बजाय वो प्रेजेंट करते हैं जो दूसरों को अच्छी लगती है और उसको हम बोलते हैं दैट इज नॉट बीइंग ऑथेंटिक. सो बीइंग ऑथेंटिक का मतलब बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ या बीइंग इन इंटीग्रिटी विद योरसेल्फ. मतलब कि जो हम वास्तविकता में हैं वो हम दूसरों को प्रेजेंट कर सकते. तो ये ऑथेंटिसिटी का मतलब. Very nicely reply about the question, sir, that we always try to live according to others. We never think what we want from ourselves. Moving towards the second question, sir. Mostly we are trying to fit in the groups and society. Is it okay, sir? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूजुअली जैसे मैंने पहले बोला कि हमारा जो जीवन है वो पूरा हम वी लिव टू प्लीज अदर्स. और उसका कारण ये है कि हम पहली बात तो कि हम खुद मैं एक वर्ड शायद कई बार यूज करूंगा, बीइंग ग्राउंडेड. बीइंग ग्राउंडेड मतलब कि हम इमोशनली स्टेबल हैं. अगर हम वो नहीं हैं तो तो हम क्या करते हैं कि हम दूसरों को प्लीज करने की कोशिश करते हैं. हमारा जो जीवन होता है वो दूसरों के हिसाब से होता है. एक बहुत अच्छा मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है जिसमें अब्राहम मैस्लो काफी पहले के एक फिलोसोफर हैं, उन्होंने बताया कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं फूड वाटर एयर ये सब हमारे बेसिक नीड्स हैं. उसके बाद थोड़ा हायर उस पिरामिड में आता है इमोशनल नीड्स. और इमोशनल नीड्स में क्या है, वी वांट टू बी वैल्यूड,
वी वांट टू बी अप्रिशिएटेड, वी वांट टू बी एक्सेप्टेड। देयर इज इसको हम बोलते हैं नीड टू बिलोंग टू अ कंट्री, बिलोंग टू अ सोसाइटी। और वो नीड टू बिलोंग इतनी इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि वो अगर हम इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से भी देखें तो वो नीड टू बिलोंग इतनी पावरफुल होती है कि हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि अगर हम एक ग्रुप में नहीं हैं तो अगर हम समझें, अगर हम अकेले रहेंगे तो हम सेफ नहीं। टू बी सेफ एंड सिक्योर, टू बी अलाइव, वी हैव टू बिलोंग टू अ ग्रुप, राइट? और टू बिलोंग टू अ ग्रुप वी हैव टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। ये एक समझ है। पर जब हम मैच्योर नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं जस्ट टू फिट इनटू द ग्रुप। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कि मुझे हम एग्जांपल लें कि अगर मुझे हिंदी में बात करना पसंद है पर मेरे आसपास के लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं और वो बोलेंगे कि अगर मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो शायद मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं, ऐसा उनका विचार हो सकता है। दैट मे नॉट बी ट्रू। मतलब ऐसा अगर देखे जाए तो मैं अगर पर्सनली बात करूं तो आई हैव अ पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम यूएस एंड आई हैव लिव्ड इन यूएस फॉर 12 इयर्स। तो अगर किसी को नहीं पता है और वो हिंदी में मैं बात कर रहा हूँ तो वो मुझे कैसे जज करेगा कि ये तो व्यक्ति इसको कुछ आता नहीं है, समझदार नहीं। ये एक जजमेंट है। और उससे बचने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं टू बिलोंग व्हाट आई विल डू टू फिट इन, जो आपका क्वेश्चन था, मैं अपने आप को सोफिस्टिकेटेड प्रेजेंट करूंगा जो मैं नहीं हूं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंग्लिश में बात करूं इवन दो इफ आई प्रेफर हिंदी। तो ये जो पर उसमें क्या हो रहा है कि आई एम सेक्रीफाइसिंग माई ऑथेंटिसिटी, आई एम लिविंग माई नॉट इन इंटीग्रिटी विथ माई सेल्फ। सो ये जो है वो सही नहीं है। इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमको थोड़ा मैच्योरिटी जरूरी है क्योंकि हम ऐसा भी नहीं है कि सोसाइटी के नॉर्म्स से हम रूल्स को फॉलो नहीं करें, पर किस चीज़ को फॉलो करना है और किस चीज़ में हमारी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करना है, ये बैलेंस हमको धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीखना है। Thank you so much, sir, for this valuable answer. Now, moving towards the next question, sir. Since this topic is very interesting, so there will be more research is already done on this topic. So, sir, could you tell us what are the researches done on this topic? Sure. तो मैं जैसे जब मैं यूएस में भी था तो मैंने कई लोगों से मैंने सीखा। आई वॉज फॉर्चुनेट कि आई गॉट ट्रेनिंग फ्रॉम मैनी पर्सनैलिटीज़ जो कि इस फील्ड में बहुत एक्सपर्ट्स हैं। क्रिस्टीना कैसेनोवा इज माई टीचर, वन ऑफ प्राइमरी टीचर्स, एंड अदर देन दैट आई हैव रेड अ लॉट ऑफ बुक्स एंड हर्ड अ लॉट। तो ये जो भी मैं आज प्रेजेंट कर रहा हूँ ये सब काफ़ी रिसर्च पर बेस्ड है। और हम रिसर्च को इसलिए वैल्यू करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर मैं मेरे मन से कुछ प्रेजेंट करूं तो उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पर एक प्रॉपर साइंटिफिक वे से अगर रिसर्च को समझा जाए तो वो हम उसको ज़्यादा ऑथेंटिक हमको लगता है। तो देर आर अ लॉट ऑफ रिसर्च, जैसे कि एक पर्टिकुलर रिसर्च है जो काफ़ी फेमस रिसर्च है, 75 ईयर लॉन्ग। उसको कहा जाता है कि विश्व की अभी तक की सबसे लंबी रिसर्च है क्योंकि वो 75 साल तक चली और हार्वर्ड ने उसको किया जो कि काफ़ी एक जाना माना स्कूल है। एंड रिसर्च वाज अबाउट कि स्टडिंग लाइफ ऑफ डिफरेंट पीपल कि हाउ इट इम्पैक्ट्स अस, हाउ हमारी लाइफ में लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसे कोई व्यक्ति खुश रह सकता है। एंड व्हाट दे फाउंड इज दैट रिसर्च के कुछ एक दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हमारे लिए एक तो ये था कि हमारे सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हमें खुश रहना हमारे जीवन में, इफ यू वांट हैप्पीनेस, वी नीड गुड कनेक्शंस इन लाइफ, रिलेशनशिप्स। सेकेंडली, टू बी सक्सेसफुल वी हैव टू हैव अ वेरी गुड कनेक्शन विद अवर मदर। तो इस टाइप की एक ये रिसर्च है। एक रिसर्च है एक रिसर्च है रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। एक पर्सन है, उन्होंने रिसर्च की अबाउट कि जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसके क्या थॉट्स होते हैं। और वो काफ़ी रेलेवेंट है हमारे आज के टॉपिक से क्योंकि उसमें से 5 पॉइंट्स उन्होंने मेनली बताए हैं। उसमें से एक पॉइंट यही है कि लोग जब मरने वाले होते हैं तब वो ये उनको दुख होता है कि आई विश आई वॉज ट्रू टू माई सेल्फ। जब मेरा जीवन में आई विश कि मैंने अपने हार्ट को फॉलो किया होता, हम वो नहीं कर पाते हैं और फिर उसका
बाद में हम रिग्रेट करते हैं जीवन में, जब वो बहुत लेट हो जाता है। तो ये भी एक रिसर्च है। उसके अलावा एक केस स्टडी है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कैसे हमारे बचपन में जो एनवायरनमेंट हमको मिलता है उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर लाइफ भर रहता है। स्पेशली इवन फिजिकल डिजीजेस को कह रहे हैं, रिसर्च बता रही है कि उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है बेस्ड ऑन हमारे बचपन में हमारा इमोशनल एनवायरनमेंट कैसा था। हम कई बार सोचते हैं कि फिजिकल हेल्थ मतलब अगर हमें कुछ बीमारियां हैं, कैंसर, डायबिटीज या इस टाइप की चीज़ें, तो वो लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती हैं, हमारे खाने पीने, एक्सरसाइज पे। परंतु ये रिसर्च बता रही है कि उसका एक बड़ा इम्पैक्ट किस चीज़ का होता है कि हमारा इमोशनल एनवायरनमेंट कैसा था, स्पेशली जब हम छोटे थे। तो इस प्रकार की कई सारी रिसर्च हैं। आई लाइक टू रीड ब्रेने ब्राउन, डॉक्टर गबोर माते, डॉक्टर डेविड रिको. They are all very good authors. They talk about research in this area. Thank you so much, sir. मैं तो I was just thinking very deeply about this topic, and thank you so much, sir, for sharing the key point of this topic. So moving towards the second question, my next question, sir, my next question is how we can say no to others when we are having a nature of saying yes always. Yes, ये मेरा एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जब मैं टॉक्स वगैरह देता हूँ कि अगर हम अपने आप से पूछें, आपने सही आइडेंटिफाई किया कि हम कई बार बोलना चाहते हैं हाँ या हम बोलना चाहते हैं ना, पर हम बोलते यस हैं। क्यों? क्योंकि वी गेट यूज टू दैट। और उसका एक कारण यह है कि वी फील कि अदर्स विल एक्सेप्ट अस ओनली इफ वी से यस, राइट। और वो जो बिलोंगिंग वाली बात हम कर रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वी हैव टू हमको ये समझना कि वी कैन ओनली से नो इफ वी आर वेरी क्लियर अबाउट अवर वैल्यूज। एक वर्ड मैं काफ़ी यूज करता हूँ, बाउंड्रीज। हमें हमारी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि हमें हमारी बाउंड्रीज नहीं पता होती, तो हम हर चीज़ के लिए हाँ बोलना चाहते हैं, हम हर चीज़ के लिए हाँ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वी वॉन्ट टू प्लीज पीपल, वी वॉन्ट टू बी एक्सेप्टेड बाय अदर्स, वी वॉन्ट टू बी वैल्यूड। और हमें लगता है कि हम वैल्यू हमारी तब होगी जब हम दूसरों के हिसाब से काम करें। पर इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। वो फ्लॉ ये है कि अगर हमारे जो संबंध है, हमारी रिलेशनशिप्स हैं, उसमें मान लीजिए कि एक दूसरा जो भी व्यक्ति है वो हमें सिर्फ सुपरफिशियली देख रहा है, और सुपरफिशियली देख रहा है तो उसके लिए हम इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए सिर्फ वो इम्पोर्टेंट है कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि मोस्टली पीपल आर सेल्फिश। अगर हम भी देखें तो कहीं ना कहीं हम भी सेल्फिश हैं। हम एक होता है सेल्फिश और एक होता है सेल्फ केयर, इन दोनों में डिफरेंस है, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। पर मोस्टली व्यक्ति सेल्फिश होते हैं। तो जब हम से कुछ कोई एक्सपेक्ट करता है कुछ, उसका कारण ये है कि वो उनकी नीड है, वो कुछ हमसे चाहते हैं, हमारे बारे में नहीं सोच रहे। तो हमको ये क्लियर होना चाहिए कि ऐसे संबंध जो एक प्रकार से खोखले हैं, तो सुपरफिशियल हैं, जिसमें कि व्यक्ति एक्चुअली हमारे बारे में नहीं सोच रहा, वो अपने बारे में सोच रहा है, तो फिर ऐसे संबंध में स्पेशली नो बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि नहीं तो जब हम यस बोलने की आदत हो जाएगी तो वी विल बी, एक तो हम ऑथेंटिक नहीं रहेंगे अपने आप से, वी विल बी लूजिंग अवर सेल्फ, एंड देयर इज अ गुड चांस पीपल कैन एक्सप्लॉइट अस। क्यों? क्योंकि हमारी नीड क्या है? हमारी नीड है टू बिलोंग, हमारी नीड है टू बी एक्सेप्टेड एंड वैल्यूड। और कुछ लोग उसको ऑनर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, पर कुछ लोग उसको मिसयूज कर सकते हैं, हमको मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो दैट इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट अवर बाउंड्रीज एंड वेरी क्लियरली लर्न टू से नो। हमारा एनवायरनमेंट अनफॉर्चुनेटली हमको ये सिखाता नहीं है, और इसलिए हमें आदत नहीं होती है नो बोलने की। तो जब हम शुरू में करते हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। पर अगर हमें सही एनवायरनमेंट मिले, हम नो तब बोल सकते हैं जब हम सेफ फील करते हैं कि यस आई हैव द राइट टू से नो, एंड स्टिल दैट रिलेशनशिप विल बी देयर। क्योंकि नो हम तब नहीं बोल पाते जब हमें लगता है कि रिलेशनशिप खतरे में आ जाएगी अगर हम नहीं बोलेंगे। तो ये जो रिलेशनशिप स्ट्रांग होना और मैच्योर होना, तब हम नो बोलना आसान होता है, और वो हम प्रैक्टिस से सीख सकते हैं अच्छी रिलेशनशिप।
So firstly, sir, we need to work for our relationship that it should be strong. After that, we can say no. Otherwise, if the relation is not strong and we are saying no, so relationship will be in the worst state. ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि ये भी समझना जरूरी है कि अगर किसी व्यक्ति के लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम यस बोलें, इसका मतलब कि बेहतर है शायद कि वो रिलेशनशिप हम क्लोज नहीं रखें, क्योंकि हर रिलेशनशिप में कितने हमारा डिस्टेंस होगा ये हम चूज कर सकते हैं। तो कुछ रिलेशनशिप्स हमारी बहुत क्लोज होंगी, इंटीमेट होंगी, जिसमें कि हमें नो बोलना अलाउड, और अगर ऐसी रिलेशनशिप्स हैं जिसमें हम नो नहीं बोल सकते हैं, तो बेहतर है कि ऐसी रिलेशनशिप हम थोड़े डिस्टेंस पे रखें, क्योंकि नहीं तो डिफिकल्ट होगा हमारे लिए, मतलब इट विल बी इट्स रिस्की फॉर अस, नॉट सेफ। Okay, thank you, sir. Now moving towards the next question. Sir, everyone has strength and weakness. So my question is related to this. How we can hide our weakness and how we can turn up our weakness into our strength. How we can do this, sir? इसमें प्रश्न ये आता है कि हम हमारी वीकनेसेस को हाइड क्यों करना चाहते हैं। अगर हम थोड़ा सा पहले पीछे जो मैंने बोला उस पर कनेक्ट करें इसको, हम हमारी वीकनेसेस को हाइड इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि लोग हमें वैल्यू तब करते हैं अगर हम स्ट्रांग हैं, अगर हम परफेक्ट हैं, और इसलिए हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते अगर हमारे अंदर कुछ वीकनेसेस हैं। बट दैट्स एक्चुअली अ वेरी बोल सकते हैं कि अनस्टेबल वे ऑफ लिविंग, क्योंकि हमें पता है कि हम परफेक्ट नहीं। अगर हम स्पिरिचुअल दृष्टि से देखें तो देयर इज ओनली वन परफेक्ट पर्सन, दैट इज गॉड। अदर देन दैट एवरीवन इज इम्परफेक्ट। हमारी बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं और हमारी कुछ लिमिटेशंस भी हैं हर व्यक्ति के अंदर। वो भले ही कितना भी स्मार्ट हो, कितना भी सुंदर हो, कितना भी पावरफुल हो, पर हर व्यक्ति में कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं और कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो हमको ये एक्सेप्ट करना होगा सबसे पहले कि आई हैव वीकनेसेस एंड दैट इज ऑल राइट, दैट इज ओके टू हैव वीकनेसेस। अगर हमने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद हम उसको छुपाने का प्रयास नहीं करें, देन वी डोंट हैव टू हाइड अवर वीकनेसेस। सो एक्चुअली टू शो अप विथ अवर वीकनेस इज अवर स्ट्रेंथ। ये जो वर्ड अगर आप इस सेंटेंस के ऊपर अगर आप गौर करें, टू शो अप विथ अवर वीकनेस इज अवर स्ट्रेंथ, तब हम मतलब शक्तिशाली। डॉक्टर ब्रेने ब्राउन का काफ़ी पावरफुल एक टेड टॉक भी है और काफ़ी अच्छे आइडियाज़ हैं इस बारे में। शी सेज वल्नरेबिलिटी मतलब कि हमारी वीकनेसेस को दिखाना दूसरों को। तो हम ऐसा नहीं है, इंग्लिश में एक फ्रेज भी है कि वी डोंट हैंग अवर डर्टी लॉन्ड्री आउटसाइड। हम हर किसी को जाके प्रचार नहीं करते हैं कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, बट आई एम ओके इफ समवन सीज माई वीकनेसेस। मैं उसको छुपाने के लिए झूठ बोल के उसको ढकने का प्रयास अगर कर रहा हूँ तो दैट मीन्स आई एम नॉट ऑथेंटिक एंड आई एम नॉट पावरफुल। मतलब अगर सो व्हाट आई मीन इज कि वी डोंट हैव टू हाइड अवर वीकनेसेस। ब्रेने ब्राउन का सेंटेंस है कि टू बी होलसम इन लाइफ वी हैव टू बी वल्नरेबल। अगर हम वाकई में पूरा जीवन, जैसे अगर हमें कहीं जाना है, रोड पे हम जा रहे हैं, तो देयर इज अ चांस कि कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, तो क्या इसका मतलब है कि हम रोड पे निकलना बंद कर दें? नहीं, राइट। तो हम रिस्क लेते हैं, हम वल्नरेबल होते हैं, पर तभी हम हमारे जीवन को पूरी तरीके से जी सकते हैं। टू शो अप विथ अवर वीकनेसेस कैन बी अवर स्ट्रेंथ, शुड बी अवर स्ट्रेंथ। Thank you, sir. You reply very truly that why we need to hide our weakness. Thank you so much, and you reply in very nicely, sir. Now moving towards the next question. My next question is, sir, how we can leave impression on others? हम दूसरों पर इम्प्रेशंस कैसे अच्छा डाल सकते हैं? तो अगर हम मैस्लोज हायरार्की की तरफ वापस जाएं, और इसी प्रकार से एक मार्शल रोजनबर्ग करके बहुत अच्छे टीचर हैं, उन्होंने नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के बारे में वो बात करते हैं। तो उनकी उसमें एक इन्वेंट्री ऑफ नीड्स है, नीड्स इन्वेंट्री। अगर हम बेसिक साइकोलॉजी हमारे मनुष्य जीवन की समझें तो व्हाट वी रियली नीड इज
वी नीड, हर व्यक्ति को चाहिए कि वी हैव टू बी वैल्यूड, वी वांट टू बी वैल्यूड, वी वांट टू बी अंडरस्टूड, वी वांट टू बी हर्ड, कि लोग हमें समझें, लोग हमें वैल्यू करें, लोग हमें सुने। अगर हम दूसरों को अच्छा इंप्रेशन देना चाहते हैं, अगर हम छोटी छोटी चीज़ें करना चालू करेंगे, तो एक्चुअली हम दूसरों की लाइफ में बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, एंड पीपल विल बी हैप्पी टू बी अराउंड अस। जो हम एनर्जी कैरी करते हैं, वो एनर्जी क्या होगी कि यस, आई एम इंटरेस्टेड इन यू, आई रियली अप्रिशिएट यू, एंड आई एम नॉन जजमेंटल। मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ कि आप कैसे दिख रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, आपके अंदर क्या कमियां हैं। हम सुपरफिशियली नहीं देख रहे हैं। अगर मैं दूसरों को सुपरफिशियली नहीं देख रहा हूँ, तो लोग मुझे, दे विल बी इम्प्रेस्ड बाय मी, क्योंकि पीपल विल बी एबल टू कनेक्ट विथ मी एंड आई विल बी एबल टू कनेक्ट विथ पीपल। तो ये जो, अगर हम इफ वी वांट टू लीव अ गुड इम्प्रेशन ऑन अदर्स, तो एक चीज तो ये है कि हम नॉन जजमेंटल बने, हम वी आर ऑथेंटिक, जो हमारा टॉपिक है। अगर हम ऑथेंटिक हैं, हम इंटीग्रिटी में हैं हमारे खुद से, तो पीपल विल बी इम्प्रेस्ड, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल्स अभी सोसाइटी में नहीं है। मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, वो दूसरों के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज करके अपना जीवन जी रहे हैं, तो वो खुद भी खुश नहीं है और दूसरे तो खुश हो ही नहीं सकते। सो एक्चुअली एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, अगर आपने सुना होगा, एक द मैन ऑफ ला मांचा मूवी है, इंग्लिश सॉन्ग है, उसका टाइटल है द इम्पॉसिबल ड्रीम, और बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग है, इम्पॉसिबल ड्रीम। और उसमें ये वर्ड्स आते हैं इंग्लिश में, आई विल रीड, जो मुझे याद है कि एंड आई नो इफ आई विल ओनली बी ट्रू टू दिस ग्लोरियस क्वेस्ट, कि अगर मैं इस, जो भी मेरी जर्नी है, जो मेरा एक प्रकार से लाइफ है, उसके प्रति मैं ट्रू हूँ, तो मैं प्रसन्न रहूंगा जब मैं, आई विल बी हैप्पी व्हेन आई विल बी लेड टू माय रेस्ट, एंड द वर्ल्ड विल बी बेटर फॉर दिस, कि वर्ल्ड एक एग्जाम्पल देखेगा, वो बेहतर होगा, क्योंकि वो देखेगा कि वन मैन स्कॉन्ड एंड कवर्ड विद स्कार्स, एक व्यक्ति जिसके अंदर कुछ स्कार्स थे उसको, पर फिर भी उसने करेज के साथ स्टिल स्ट्रोव विथ हिज लास्ट आउंस ऑफ करेज टू रीच द अनरीचेबल स्टार, कि हमने अपना प्रयास किया करेज के साथ टू रिमेन ट्रू टू लाइफ, and that people will appreciate and they will be impressed by us. Thank you so much, sir, for these important points. Sir, my next question is based on the stress in workload and relationship. How stress in work can be managed in a relationship? तो actually एक डॉक्टर गबोर माते, he keeps saying about this a lot, about stress. He is a physician in Canada. तो वो बताते हैं कि जो ये काफ़ी रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट को, मेडिकल डॉक्टर्स को ये समझ में आया है कि हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, बोथ ऑन अ फिजिकल लेवल एंड इमोशनल लेवल, मोस्ट ऑफ देम आर आउट ऑफ कमिंग बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। अभी जो हमारा एनवायरनमेंट है जिसमें हम रह रहे हैं, मतलब जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, उसमें चीज़ें बहुत स्ट्रेसफुल हो गई हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेट हो गई हैं, हम नेचुरल वे ऑफ लिविंग से दूर हो गए, तो इसलिए स्ट्रेस बढ़ रहा है हमारे वर्क में, हमारी एक्सपेक्टेशंस है, एक फाइट है, एक प्रकार से कंपटीशन है, तो हर चीज़ में स्ट्रेस है, और वो स्ट्रेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है, हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी होता है। जो डायबिटीज़, कैंसर, इस टाइप के जो कई सारे बीमारियां हैं, दे आर बिकॉज ऑफ स्ट्रेस इन आवर लाइफ। ऑटो इम्यून डिजीजेज फॉर एग्जाम्पल, दे आर कोपिंग मैकेनिज्म। सो हमारी फिजिकल हेल्थ प्लस इमोशनल हेल्थ पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है स्ट्रेस का। और फिर अगर हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट है, तो वो उसका इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप्स पे भी पड़ता है, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस में हैं, जैसे हमने देखा होगा, स्पेशली मूवीज में भी देखते हैं हम, कि एक बच्चा है, वो बच्चा आया अपने माता पिता के पास, और उसके पिता ने उसको मार दिया। और क्यों मारा? क्योंकि बच्चे की गलती नहीं थी, एक्चुअली वो पिता के ऊपर इतना स्ट्रेस था कि वो कहीं और का स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन वो कहीं और निकल गया। तो इस प्रकार से हमारी रिलेशनशिप्स खराब होती हैं, क्योंकि हम ग्राउंडेड नहीं हैं। तो टू डील विद दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी क्लियर। अगर हमें ये सब चीज़ें बेसिक्स क्लियर भी होंगी, अगर अंडरस्टैंडिंग होंगी,
तो वो भी हमें हेल्प करता है. बट ऑल्सो देन वी कैन डील विथ स्ट्रेस बाय क्रिएटिंग बाउंड्रीज. हमें हमारी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए कि क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं. जब हमारी बाउंड्रीज से बाहर निकल के हम काम करते हैं तो कभी कभी थोड़े समय के लिए अच्छा रहता है, पर सस्टेनेबल नहीं. और सस्टेनेबल नहीं होने के कारण वो फिर हम फ्रस्ट्रेट होते हैं या रिसेंटमेंट आता है हमारे अंदर. तो इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट टू बी टू हैव अवर बाउंड्रीज. और इम्पोर्टेंस ऑफ अगर हम जैसे आपने रिलेशनशिप्स की बात की, तो रिलेशनशिप्स कब खराब होती हैं? जब रिलेशनशिप्स में हमको ये क्लैरिटी नहीं होती कि हम क्या वास्तविकता में कनेक्ट कर रहे हैं लोगों से. हम कई बार जैसे मेरे को एक बहुत अच्छा एग्जांपल लगता है. हम कई बार बोलते हैं कि चलो हम मूवी देखने चलते हैं, राइट. अब हम 3 घंटे मान लीजिए हम किसी के साथ गए मूवी देखने, तो हमको लगता है कि हमने 3 घंटे उस व्यक्ति के साथ स्पेंड किए, पर एक्चुअली देखा जाए तो हमने आपस में कनेक्ट किया ही नहीं. हमने क्या मूवी से कनेक्ट किया. उसके बजाय अगर हम 5 मिनट भी आपस में डीपर लेवल पे कनेक्ट करें, सुपरफिशियली नहीं, थोड़ा डीपर लेवल पे मैच्योरली एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, एक दूसरे को सुनने का प्रयास करें, तो वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कई ज़्यादा बोल सकते हैं कि डिग्री में स्ट्रांग होगी. So spending quality time with each other is important for dealing with a healthy relationship. और फिर हम स्ट्रेस से भी डील कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रेस अगर हमारी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है तो हम स्ट्रेस से डील करना आसान होता है. क्योंकि देन वी हैव पीपल, देयर इज अ रिसर्च बाय इन ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक देयर वाज अ गुड रिसर्च. और बहुत अच्छा पॉइंट था कि मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि उन्होंने 2 फैक्टर्स को स्टडी किया. जो कुछ फीमेल जिनको की लंप था उनकी बॉडी में, इस चीज को कि वो कैंसर होगा या नहीं होगा, इस चीज को चेक किया गया. तो उसके कैंसर होने की क्या संभावनाएं थी, वो 2 फैक्टर उन्होंने स्टडी किए. एक फैक्टर ये था कि क्या हमारी लाइफ में स्ट्रेस है और या नेगेटिव इवेंट्स हैं, और सेकंड फैक्टर था कि क्या हमारी लाइफ में ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है. तो उन्होंने पाया कि कैंसर का संबंध, अगर हम एक एक आइटम को लें कि क्या हमारी लाइफ में इवेंट्स नेगेटिव इवेंट्स हैं, यस, पर उसका कैंसर से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं था. अगर हमारी लाइफ में अच्छे लोग नहीं हैं, उसका भी कैंसर से डायरेक्ट संबंध नहीं था. पर अगर दोनों चीजें साथ में हैं, मतलब कि हमारी लाइफ में स्ट्रेस भी है और हमारी लाइफ में बहुत क्लोज रिलेशनशिप भी नहीं है, अगर दोनों चीज हैं, तो देयर वाज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि उस व्यक्ति को कैंसर था, या वो जो लंप था वो कैंसरस निकला. ये जो रिसर्च है वो ये बता रही है कि एक्चुअली अगर हमारी लाइफ में हमारी बहुत स्ट्रांग अच्छी रिलेशनशिप्स हैं, तो जब स्ट्रेस होता है तो हम वो एग्जांपल में अगर हमारे कंधे पे कोई हाथ रख के बोले कि यस एवरीथिंग इज फाइन, आप मतलब कि वी विल डील विद दिस टुगेदर, तो हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं, राइट. तो वो जो रिलेशनशिप है उसके कारण हम उस स्ट्रेस से डील कर सकते हैं. एंड अदर वे राउंड, अगर हम हमारी रिलेशनशिप्स नहीं है तो छोटा मोटा स्ट्रेस भी हम डील नहीं कर पाएंगे, एंड इट विल बिकम बिग एंड इट विल इवेंचुअली लीड टू फिजिकल डिजीज. Thank you so much, sir. You explained the term stress, workload, quality time, relationship in very simple way. So moving towards the next question, sir, if someone is abusing us, so at that time what we need to do? Do we come at his level and start abusing him, or do we need to be silent at that time? What we need to do? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बोला कि जब हम वल्नरेबल होते हैं तो देयर इज अ चांस कि लोग हमें एक्सप्लॉइट करें या हमें अब्यूज करें. अब हमारे बिहेवियर से हम दूसरों को हमेशा सिखा रहे हैं कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है. सो अगर कोई हमें अब्यूज करता है तो आपका प्रश्न ये है कि क्या हम उसको करने दें या हम भी उस लेवल पे आ जाएं और उसको अब्यूज करें. हम ये बोलेंगे कि डेफिनेटली ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम अपने आप को एक्सप्लॉइट या अब्यूज होने दें. दैट इज कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल. और जो दूसरी एक्सट्रीम है
कि हम दूसरों को अब्यूज करें वो भी जरूरी नहीं है कि हमको उस लेवल तक जाना पड़े। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज, जैसे मैंने बोला था कि बाउंड्रीज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमको हमारी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए और हम उसको क्लियरली कम्युनिकेट करें। कि अगर आप मेरे साथ, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में भी बहुत अच्छा मार्शल रोजनबर्ग सिखाते हैं कि अगर मेरे साथ मैं किसी के साथ कुछ कम्युनिकेट करना चाहता हूं तो उसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहला, कि मैं एक ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट करूं कि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, और फिर उसके बाद मैं प्रेजेंट करूं कि जब आप ऐसा करते हैं, कुछ आपने ऐसा किया, आपने मुझे अब्यूज किया या आपने मेरे साथ इस प्रकार से व्यवहार किया, ये ऑब्जर्वेशन है, तो मुझे क्या फील हुआ, ये सेकेंड पार्ट है कि मुझे क्या फीलिंग है, सो आई एम कम्युनिकेटिंग माई फीलिंग। थर्ड पार्ट इज कि आई एम कम्युनिकेटिंग व्हाट आर माई नीड्स, मेरी ये नीड है जो फुलफिल नहीं हो रही है, अगर आप ऐसा करते हैं तो। और फिर चौथा पार्ट है रिक्वेस्ट, कि आई रिक्वेस्ट, विच इज हैज टू बी वेरी क्लियर इन बाउंड्रीज, जो हम बोल रहे हैं कि डोंट डू दिस प्लीज, दिस इज माई बाउंड्री, प्लीज ऑनर माई बाउंड्री। तो ये जब क्लियर कम्युनिकेशन होगा तो हम अब्यूज नहीं होंगे, और हम डेफिनेटली दूसरे को ही सिखा रहे हैं कि यस, वी आर पावरफुल, आई एम स्ट्रांग एंड आई विल नॉट लेट यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आई हैव माई बाउंड्रीज एंड आई वॉन्ट यू टू ऑनर माई बाउंड्रीज। मैं आपको रिस्पेक्ट करूंगा या मैं आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ, पर आई एक्सपेक्ट कि यू ऑनर एंड रिस्पेक्ट माई बाउंड्रीज। अगर कोई रिलेशनशिप अच्छी है, स्ट्रांग है, तो वो चीज, वो सामने वाला हमारी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करेगा। और अगर वो हमारी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब फिर, जैसे मैंने पहले कहा था, कि हमको थोड़ा सा उस रिलेशनशिप में डिस्टेंस बनाना चाहिए। So we need to set our boundaries and other person need to understand what boundaries we are having. Okay. Thank you, sir. Next question is there any way by which we can boost up our mental health, our mental state? Yes, very important question. हमारी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इस पे फोकस नहीं करते। हम फिजिकल हेल्थ के बारे में तो सुनते हैं, सोचते हैं, हमें एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर रेस्ट लेना है, प्रॉपर सही खाना है, पर मेंटल हेल्थ के बारे में ज्यादा सोचते नहीं। परंतु मेंटल हेल्थ हमारी फिजिकल हेल्थ जितनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे अंदर जो बहुत सारा पोटेंशियल है वो तभी बाहर आ सकता है जब हम मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग हैं, और हमारा एनवायरनमेंट हमने ऐसा बनाया जो हमको ग्रो करने में कंड्यूसिव है, हमको हेल्प कर रहा है। जैसे एक बीज है, बीज को अगर ग्रो करना हो तो उसको सही एनवायरनमेंट चाहिए, राइट? उसको सही खाद, पानी, हवा, मिट्टी, सूर्य रोशनी चाहिए। तो इसी प्रकार से अगर हमें प्रॉपर हमारी मेंटल हेल्थ को रखना है तो हमारा एनवायरनमेंट हमको अच्छा बनाना पड़ेगा जो उसके लिए कंड्यूसिव है। तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो हमारी जो जैसे हम अगर अच्छी लोगों का संग ले रहे हैं, एनवायरनमेंट मतलब हमारे आसपास के लोगों के विचार कैसे हैं, किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, किस प्रकार की एनर्जी, जो हम पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं, कि क्या हमारा एनवायरनमेंट में पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव है जो हमको ड्रेन कर रही है। क्या लोग हमारे पास में हैं जो हमको नरिश कर रहे हैं, या हम जो पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर हमें अच्छा मेंटल हेल्थ बनाना है तो हम जैसे खाद पानी देते हैं बीज में, या अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करें तो हम एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं। तो हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छी रखने के लिए हमें अपने आप को अच्छा रीड, अच्छी चीज़ें पढ़ें। आजकल इंटरनेट के माध्यम से बहुत देयर इज़ वेरी वेरी गुड नाइस मटेरियल अवेलेबल। बहुत अच्छे वीडियोस हैं यूट्यूब पे और अन्य जैसे जो आपके जैसे टॉक शो टाइप के जो लोगों को एम्पावर करते हैं, उस टाइप की चीज़ें देखें और ऐसे लोगों का संग लें, ऐसे लोगों से एसोसिएट करें जो हमको एम्पावर करें, नरिश करें, और ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहें जो हमको ड्रेन करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। पर एनवायरनमेंट हमको चूज करना पड़ेगा, ये चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम बोलते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है तो हम हेल्पलेस हो जाते हैं, या हम बोलते हैं कि हम हेल्पलेस हैं, हमारी सर्कमस्टेंसेस से हम क्या कर रहे हैं। बट हर सिचुएशन में चॉइस हमारे पास है,
हमारे चॉइस ऐसी होनी चाहिए कि हम क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं और क्या रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या हमारी वैल्यूज हैं वो हमें क्लियर है, तो हम उस हिसाब से हमारा एनवायरनमेंट करें। So by following these ways, these tips, we can boost up our mental health. Okay. Moving towards the next question, sir, if someone is taking us for granted, if someone is ignoring us or insulting us, disrespecting us, so what we need to do at that time? How we can manage the things that someone is respecting us? थोड़ा सा तो अगर हम बोल रहे हैं कि दूसरे हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं फिर से हम बाउंड्रीज की बात कर सकते हैं कि बाउंड्रीज हमें पता होनी चाहिए कि क्या अलाउड है क्या नहीं है। पर साथ ही साथ स्पेशली अगर हम दूसरों को रिस्पेक्ट चाहते हैं कि दूसरे हमें रिस्पेक्ट करें, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसा कहते हैं कि व्हाट वी गिव कम्स बैक टू अस। जो हम बोते हैं वही हम रीप करते हैं, राइट? व्हाट वी सो इज व्हाट वी रीप। तो अगर हमें ये समझ में आ जाए कि दूसरों की अगर हम दूसरों को रिस्पेक्ट करेंगे तो दूसरे हमें रिस्पेक्ट करेंगे। अगर हम दूसरों के प्रति नॉन जजमेंटल हैं तो लोग हमें नॉन जजमेंटल रूप से ट्रीट करेंगे। और रिस्पेक्ट के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आपका क्वेश्चन है कि हाउ पीपल कैन रिस्पेक्ट अस, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी रिस्पेक्ट आवरसेल्व्स। इफ वी डोंट वैल्यू आवरसेल्व्स, क्योंकि एक सबसे बड़ी लैकिंग यहीं पे होती है कि हम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते, हम अपने आप को काइंडनेस के साथ ट्रीट नहीं करते, तो फिर दूसरों से भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो वी हैव टू वैल्यू आवरसेल्व्स, वी हैव टू रिस्पेक्ट आवरसेल्व्स। व्हेन वी डू दैट, पीपल विल आल्सो रिस्पेक्ट अस। और फिर हमारा नेचर डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए कि अगर हम एब्यूजिव हैं, अगर हम दूसरों को वैल्यू नहीं देते, तो फिर दूसरे भी हमें वैल्यू नहीं देंगे। सो कुछ क्वालिटीज पे फोकस करना होगा। ये जो क्वालिटीज हैं ये धीरे धीरे डेवलप होती है कि जब हम कंपैशन है, कनेक्शन है, बीइंग इंटरेस्टेड इन अदर्स, जब हम वो डेवलप करते हैं तो लोग उस एनर्जी को कैच करते हैं, और फिर एक्चुअली हम देखेंगे कि हम एक डीपर लेवल पे लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे एंड पीपल विल रिस्पेक्ट अस फॉर हु वी आर। सिर्फ हम बाहर से कैसे दिख रहे हैं, हमारे पास कितना पैसा है, उसके बजाय लोग उस पे ध्यान देंगे कि हम एक्चुअली में क्या हैं, एंड दे विल रिस्पेक्ट अस फॉर दैट। So, sir, firstly, we need to respect ourselves. Yeah. Okay. So, next question is, sir, my next question is based on the time, as time is also very important point of our life. So, sir, how can we effectively use our time? ये स्पेशली हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ कि हमारे पास सभी के पास 24 घंटे ही है। ऐसा नहीं कि किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। एवरीवन हैज 24 आवर्स एंड वी सी कि कुछ लोग अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं, कुछ लोग नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने समय का बहुत प्रॉपरली यूज़ करते हैं। अगर हम फिलॉसफी के भी पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर एक सेकेंड या एक मिनट भी हमारा जब वेस्ट हो जाता है तो उसको हम वापस नहीं ला सकते। हम कितने भी पैसे दे दें, हजारों लाखों रुपए भी दे दें, तो हम उस मिनट को, एक सेकेंड को वापस नहीं ला सकते। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि टाइम बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि जो चीज़ वैल्यूएबल होती है हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। स्पेशली मुझे लगता है कि जब हम रेड सिग्नल पे खड़े होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे, और रेड लाइट होती है, वो जो 1 मिनट होता है, काउंटर आपने देखा होगा वो चलता रहता है, वो जो 1 मिनट है वो इतना बड़ा लगता है कि ऐसा लगता है कि कब खत्म होगा, राइट? और वैसे हमारे कई बार घंटों निकल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हम व्हाट्सएप देख रहे हैं या फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, कई घंटे निकल जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। तो बीइंग कॉन्शियस ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मेरा समय है, ये मुझे दिया गया है और मुझे इसको इफेक्टिवली यूज करना है। उसके लिए फिर कई सारी प्रैक्टिकल चीजें भी होती हैं कि प्रैक्टिकली हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारी लाइफ में क्या क्या गोल्स हैं, हमारे रोल्स क्या क्या हैं। मैं एज अ सन, मेरे पेरेंट्स के प्रति मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं जॉब में मेरे ऑफिस के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरे फ्रेंड्स के प्रति, मेरे अदर फैमिली मेम्बर्स के प्रति,
लार्ज सोसाइटी के प्रति, सोसाइटी इन जनरल। तो मेरे अलग अलग रोल्स हैं, वो मुझे क्लियर हों और मैं उसको लिखूं। लिखने से क्या होता है, हमको क्लैरिटी आती है। सो फर्स्ट वी राइट डाउन दोज थिंग्स एंड देन वी मेक ब्लॉक्स ऑफ टाइम कि हफ्ते में या दिन में मुझे इतना समय इन चीज़ों के लिए देना है। वो ब्लॉक्स बनाने के बाद हम उसको फिक्स कर दें। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और थोड़ा पेशेंस भी होना चाहिए कि हम हमेशा हर चीज़ परफेक्टली नहीं कर पाएंगे, तो वी हैव टू अलाउ फॉर दैट, बी काइंड टू अवरसेल्फ। पर जब हमारी ब्लॉक्स ऑफ टाइम क्लियर हैं तो देन वी हैव टू मेक अ कमिटमेंट कि यस आई विल डू दिस थिंग एट दिस टाइम, इस समय पे मैं ये करूँगा, इस समय पे ये करूँगा। इस प्रकार से जब हम करेंगे तो हम हमारे टाइम को बेहतर मैनेज कर पाएंगे। और एक और चीज़ जो बहुत हेल्पफुल रहती है टाइम मैनेजमेंट में भी, या इन जनरल किसी भी एस्पेक्ट में, कि अगर हमारे साथ में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई मेरा अच्छा फ्रेंड है जिसके साथ में वर्क कर रहा हूँ, जिससे हेल्प ले रहा हूँ कि ये मेरा चैलेंज है, कैन यू हेल्प मी, तो वो व्यक्ति के साथ अकाउंटेबिलिटी रखकर हम अपने आप को बेहतर इंडिविजुअल बना सकते इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट या किसी भी एरिया। Thank you so much, sir, for this answer. Now moving towards the next question, sir. I think it is human tendency that we don't like what we do. Like for students, they don't like studies. For the employees, they don't like job. So, sir, how to go beyond this feeling? हाँ, तो एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम कई बार बात करते हैं फॉलोइंग अवर हार्ट एंड डूइंग थिंग्स फ्रॉम अवर माइंड। तो कुछ चीज़ें हमारी होती हैं जो हमारी लाइफ में एज ए ड्यूटी हमें करनी पड़ती है, जो इम्पोर्टेंट है, हमें पता है कि ये हमें करना पड़ रहा है, राइट। और कुछ चीज़ें होती हैं जो हम करना चाहते हैं, जो हम वाकई में हमको अच्छा लगता है, हम घंटों दे सकते हैं, और दोज थिंग्स नरिश अस। तो अगर हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी हैं एज ए ड्यूटी, तो एटलीस्ट हमारी मेंटालिटी या वर्ड्स को हमें चेंज करना होगा। हमारे वर्ड्स को इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई हैव टू डू दिस, वी शुड से, वी कैन से आई चूज टू डू दिस। मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये चूज कर रहा हूँ, चॉइस बना रहा हूँ इस चीज़ को करने की। क्यों? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को हम क्लियर करें। तो मतलब हम कांच के सामने खड़े होकर ये चीज़ बोल सकते हैं कि आई चूज टू गो टू ऑफिस। हो सकता है मुझे पसंद नहीं हो ऑफिस जाना, पर आई चूज टू गो टू ऑफिस बिकॉज आई अर्न मनी बाय गोइंग टू ऑफिस एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर माई लाइवलीहुड। और साथ ही साथ हम इसके साथ थोड़ी सी कॉन्शियस अवेयरनेस इस चीज़ की डेवलप करें कि हमारे को क्या पसंद है, क्या चीज़ें हैं जो मुझे एनलाइवन करती हैं, क्या चीज़ें हैं जो मुझे नरिश करती हैं। अगर हम थोड़ा सा समय उन चीज़ों को दें जो हमें हम जिसको करने से बहुत हैप्पी फील करते हैं, नरिश्ड फील करते हैं, तो उस स्ट्रेंथ पे हम उन चीज़ों को भी कर पाएंगे जो हमको करनी एज ए ड्यूटी करनी पड़ रही हैं, या हम कर रहे हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, हम उसको एंजॉय नहीं करते हैं, परंतु दूसरी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं जो हम एंजॉय करते हैं। तो ये दोनों के बीच में बैलेंस बनाना जरूरी है। कई बार हम इतना खो जाते हैं ऐसी चीज़ें करने में जो हमें करनी पड़ रही हैं, तो हमारे पास समय नहीं होता ऐसी चीज़ें करने का जो हमें नरिश करती है। बट दैट्स अ मिस्टेक, क्योंकि अगर हम अपने आप को फिल नहीं करेंगे तो हम दूसरों को भी कुछ नहीं दे पाएंगे। अगर हमारा कप खाली है तो हम दूसरों के कप में भी कुछ नहीं डाल पाएंगे। Yes, sir. Point is very correct, sir. And definitely we will follow all these tips and all this knowledge that are shared by you. We all will going to follow these things in our life. Sir, actually I have lots of questions, but we have time limit, so I am here with my last question. Sir, I would like to ask what type of reaction we should give when the conditions of life are not in our favor, they are not in our hand. ये चीज़ समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी लाइफ में सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और इसका ये मतलब भी नहीं है कि हमारी कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारा प्रयास, आवर एफर्ट इज इन आवर हैंड्स, द रिजल्ट में नॉट बी इन आवर हैंड। हमारी सर्कमस्टेंसेस में नॉट बी इन आवर हैंड, बट द चॉइसेस वी मेक इन दो सर्कमस्टेंसेस is in our hand.
हमारी सिचुएशन कुछ भी हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हम हमारे जैसे आत्मशक्ति का कुछ हमने जैसे आपने बताया था, हम वीकली मीटअप्स होते हैं और उसमें भी इस चीज पे काफी फोकस करते हैं कि टू अंडरस्टैंड वी ऑलवेज हैव अ चॉइस। चॉइस हमारे पास हमेशा है। हमारी लाइफ की सर्कमस्टेंस कुछ भी हो, तो हमको ये सीखना पड़ेगा धीरे धीरे कि हम क्या चॉइसेस बना रहे हैं। जब हमारी लाइफ की सर्कमस्टेंसेस लेट्स से अच्छी नहीं है, तो हम क्या चॉइस बना रहे हैं? आर वी चूजिंग टू गिव अप, आर वी चूजिंग टू स्टैंड अप अगेन, आर वी चूजिंग टू आस्क फॉर हेल्प? कई बार हम हेल्पलेस हो जाते हैं, हमको लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, पर उसमें भी एक चीज कर सकते हैं कि वी कैन आस्क फॉर हेल्प, वी कैन फाइंड। हमारे जीवन में एटलीस्ट एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम बहुत कनेक्टेड, जो हमको समझता हो, जिससे हम अपना हार्ट शेयर कर सकें और हम उसके पास जाके बोल सकें कि यस दिस इज व्हाट आई एम फेसिंग। और अगर वो हेल्प नहीं भी कर पाए, अगर वो सिर्फ हमें सुन ले, तो दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारा रिएक्शन होना चाहिए? एक और जो चीज यूज होती है कि रिएक्ट वर्सेस रिस्पॉन्ड। जब हमारी सिचुएशन डिफिकल्ट होती है तो हम यूजुअली रिएक्ट करते हैं, हम सोचते नहीं हैं ज़्यादा, पर हम जस्ट हमारी जो इंस्टिंक्ट्स के साथ जाते हैं। पर हमें रिस्पॉन्ड करना सीखना, मतलब टेकिंग अ पॉज। क्योंकि वो जो पॉज है, कहते हैं कि उस देयर इज अ इवेंट and there is a response from our side and in between that there is a gap। अगर वो जो गैप है, in that moment we can make a choice। क्योंकि अगर हम चॉइस नहीं बना रहे हैं तो फिर क्या होगा? जैसे बोलते हैं ना, गुस्से में हम जब कुछ बोल देते हैं, बाद में रिग्रेट करते हैं कि अरे मैंने क्यों ऐसा बोला, या मैंने कुछ डिसीजन बना लिया, फिर बाद में सोचते हैं कि मैंने गलत किया। तो उसके बजाय अगर हम अभी पहले करने के पहले सोचें कि यस, एक मोमेंट लें कि यस व्हाट इज दिस टीचिंग मी, ये मुझे क्या सिखा रहा है, क्या मेरे लिए लेसन है, क्या मुझे करना चाहिए। तो हम अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कर सकते हैं। इंट्यूशन मतलब हमारी बॉडी, हमारे हार्ट में सुपर सोल है, हमारी जो इनर गाइडेंस बोलते हैं, उस इनर गाइडेंस, सिक्स्थ सेंस, उससे हम जब कनेक्ट करेंगे तो देन वी कैन मेक बेटर चॉइसेस। सो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग वी नीड टू लर्न टू रिस्पॉन्ड टू द सर्कमस्टेंसेस। एंड बीइंग ग्राउंडेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्राउंडेड जब हम होंगे तो हम लाइफ की किसी भी सिचुएशन को डील कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये कि हम इमोशनली स्टेबल और ग्राउंडेड नहीं होते, हमको कहीं सिखाया नहीं जाता, तो इसलिए हम इन चीज़ों से स्ट्रगल करते रहते हैं। So, firstly, we need to think, then response. Yeah, okay. Thank you so much, sir. Firstly, I would like to thank you for the entire session. The session was very informative. It was very interesting, wonderful, and knowledgeable, sir. We learned lots of things related life, related mental health, related relations, workload, emotions, and many more. I can't cover with few words and sentences. So thank you so much, sir, for being here, for your presence, for the knowledge that you share with us. And thank you so much for coming with us and accepting our invitation for SSC Talk Show. Now, for the audience, if you have any confusion, any doubt, any question regarding the session, we are displaying our email ID on the screen. So you can share your queries on that email. And now it's time for honor ceremony. Sir, we would like to present a certificate of honor, award of honor to you. I'm very grateful. Thank you very much for this chance to speak and express my thoughts. एंड जैसे कि मैंने बताया कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसे चीज़ों को सीखें, उनसे टच में रहें। तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे वीडियोस अवेलेबल हैं। हमारा भी एक चैनल आत्मशक्ति करके है, तो इफ़ यू सर्च आत्मशक्ति नंदन गर्ग, you will see there are many videos that are similar, so people can see that, and if there are any questions, I will be happy to answer them through WhatsApp or through YouTube channel. So I'm very grateful, and special thanks to Manish Punlit sir
जो हमारे एसओसी के हेड हैं और जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, और आपका भी मैम, निकिता मैम, फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड आस्किंग वेरी नाइस क्वेश्चंस. So thank you to Manish Pandit sir, Director SSC, and also to you. Thank you so much, sir. Now, for the audience, it's a special message for all of you. If you like this video and want such type of videos again on different topics, then don't forget to like the video and subscribe the channel. Thank you so much.